السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں جسیم اختر رضوی بات کر رہا ہوں. ارے واہ، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میں فون کرتا ہوں، آپ کو پریشان ہوں لگا کر کے. ارے میں ابھی حال کھانا کھا رہا تھا، فون رکھ کے چلا گیا تھا، میں ابھی حال آیا. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ تو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ مسئلوں مسائل کے بارے میں بات کرنی تھی تھوڑا مختصراً. فرماؤ، کیا حکم ہے؟ اچھا، آج عید کے دن ہے. ہاں آج عید کے دن اپنے بھائی دوستوں کو احبابوں کو عید کے نماز پڑھ کر کے مصافحہ کرتے ہیں، سلام معانقہ کرتے ہیں. ہاں ہاں، آپ کیے کہ نہیں؟ ہم نے کیا نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا کیا؟ یہ بدعت ہے نا آپ لوگوں کو اصول سے. ارے واہ، یہ کس نے کہا بدعت؟ یہ گنگوہی صاحب نے لکھا ہے، بدعت اور حرام لکھا ہے. ہم نے کب مانا فتوے کو؟ نہیں مانتے ہیں. نہ دیوبند والے مانتے فتوے کو، وہ بھی ملتے ہیں. دیوبندی خود کرتے ہیں، اس میں اس کو کتب الاقطاب لکھتے ہیں. سب سے وہ بڑا گلے تو ملتے ہیں نا وہ دیوبند. ان کے گلے ملتے ہیں، لیکن وہ خود بدعتی اور حرام کاری میں مبتلا ہیں اپنے اکابر کے فتوے سے. کیا کیا جائے بتاؤ اب آپ. دیکھیے، عید کے دن اپنے مسلمان بھائی سے ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا اور گلے ملنا یعنی معانقہ کرنا ہمیشہ سے ملت اسلامیہ میں رائج تھا اور ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خرابی نہیں بلکہ بھلائی ہی بھلائی ہے، سمجھے. کون لیکن منع؟ علماء دیوبند کو بھلائی کے اس کام میں بھی بدعت اور برائی نظر آئی، اور عید کے دن مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا کو بدعت اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب فتویٰ ارے دیا ہے. جو کہہ رہا وہ جانے، ہم نے کب کہا کہ حرام ہے؟ نہ تو ہم آپ مانتے دیوبند کے نہ دیوبندی ہم آپ حرام کے مانتے ہیں، نہ ہم اس کو حرام کہا. دیوبند والے خود ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، تو معانقہ کرتے ہیں. وہ تو خود حرام خوری میں مبتلا ہیں، ارے تو تو وہ آپ دیوبندی جاننا کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ایسے تو بہت سے بریلوی حضرات جو فاضل بریلوی کو مانتے ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو انہوں نے حرام. جیسے تعزیہ داری کو فاضل بریلوی نے حرام لکھا تھا کہ نہیں؟ تعزیہ داری تو جو حرام لکھا تھا کہ ابھی نہیں؟ ہاں؟ مروجہ ہیں اس میں بات نہیں، عید کی باتیں نہیں کر نہیں، رہے ہیں. تعزیہ داری کو کیا لکھا تھا؟ تعزیہ داری ہم تو خود اس کے مخالف ہیں. نہیں، کیا لکھا تھا فاضل بریلوی نے؟ فاضل بریلوی دے تعزیہ داری جو بناتا ہے ابھی نا، وہ قبرستان یعنی کربلا کے جو نقش و نگار ہوتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے ڈھانچے بنا لیتا ہے، اپنے مرضی سے فضول خرچی کرتا ہے. وہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو پھر ہم اس کو کب یہ حرام سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ حرام کون کر رہا ہے؟ دیوبندی کر رہا ہے کہ بریلوی حضرات کرتے ہیں؟ کون؟ اب بریلوی جو ہیں اوریجنل پکے مسلک اعلی حضرت پہ قائم دائم ہیں الحمدللہ، اور ہم اس سب سے تو خرافات سے دور رہتے ہیں. یہ کون سے بریلوی ہیں جو تعزیہ بناتے ہیں؟ بہرحال پتہ نہیں مجھے، میں تو نہیں، سخت مخالف ہوں اس کے. کون سے بریلوی ہیں جو تعزیہ بناتے ہیں؟ آپ دیکھے ہوں گے، میں تو کبھی دیکھا نہیں ہوں کہ بریلوی حضرات اعلی حضرت کی مخالفت میں اتر آئے ہوں. ایسی نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں، یہ جو تعزیہ وہ بناتے ہیں، یہ مسلک کون ہے؟ یہ جو تعزیہ بنانے والے مسلک دیوبند؟ اعلی حضرت والے ہیں نہیں، نا. یہ تعزیہ بنانے والے دیوبندی ہیں کیا؟ دیوبندی بھی بناتا ہے جی، میں دیکھا ہوں ارے بہت کثرت کے ساتھ. یہ تو چھتیس گڑھ میں آپ رہتے ہیں تو پہلی بار دیکھیے، سنا. چھتیس گڑھ میں دیوبندی لوگ بھی خود بناتا ہے، اس میں حرام کاری میں مبتلا ہے، اس کا خود ہم مخالف ہیں اور رد کرتے ہیں. بہرحال عید کے دن آج ہم مصافحہ کیے، معانقہ کیے اپنے بھائیوں سے، تو اس کو رشید احمد گنگوہی کیا فتویٰ دیا. سوال عید میں معانقہ کرنا اور بغلگیر ہونا کیسا ہے؟ جواب دیتا ہے عیدین میں معانقہ کرنا بدعت ہے فقط و سلام. اور آگے اسی طرح سے فتویٰ دیتا ہے معانقہ کرنا بالخصوص عیدین کے روز کس درجہ کا گناہ ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے. معانقہ مصافحہ بوجہ تخصیص اس روز یعنی عید کے روز سرور یعنی خوشی میں اور موحد میں اور ایام سے زیادہ مثل ضروری کی جانتے ہیں بدعت اور مکروہ تحریمی ہے. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 157 میں لکھے ہیں. اور تذکرۃ الرشید ہے جلد نمبر اول صفحہ نمبر 181 میں حرام کا فتویٰ دیے ہیں. تو اب بتائیے، آج کے دن تمام دیوبندی حضرات، اطہر صاحب سن رہے ہیں نا، ہاں، تمام دیوبندی حضرات جو مصافحہ کیا، سلام کیا، گلے ملا، سب رشید احمد گنگوہی جو کتب الاقطاب ہے اور انہی کے دین پہ چلنے کے دعوے دار ہیں، سب حرام کاری میں مبتلا ہوئے یا نہیں؟
अब तो ऐसे लोगों के साथ क्यों देते हैं आप? अपन क्या करें साहब, दुनिया है। नहीं, वो ऐसे लोगों से आप देखो बरतरफ हो जाइए ना। फाजिल बरेलवी ने मज़ारात पर जो उर्स होते हैं, कव्वालियां होती हैं बैंड बाजे से, कावलिया ये के सब तो ये कवालियां, किसमें बैंड बाजा जितने भी हैं, ये किसमें खुराफात ये आला किसमें हजरत ने बहुत ज्यादा रद्द किए हैं। तो किसमें हो रहा है, कौन लोग करा रहे हैं सब? वो जो आवाम है ना, आवाम जो कलानाम है वो लोग करता है, उलमा का इसमें दखल नहीं होता है, तमाम उलमा मना करते हैं। तो वो सब जितने भी खुराफात हैं हम मना करते हैं, लेकिन जो जायज मबा है, हदीसों से साबित है, उसको एक दो किताब उलमाए देवबंद ने एक दो किताब में नहीं लिखा है, इसमें दसों हवाला दे सकता हूँ। जैसे किफायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 302 में लिखा है बिदत मुसाफा मुआनका को बिदत करार दिया है। इमदादुल अहकाम में जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 188 में ईदैन की नमाज में मुसाफा मुआनका जो रिवाज बिदत है और हराम है कहकर इमदादुल फतावा में ये अशरफ अली थानवी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 557 में लिखा है मुसाफा मुआनका का नाम बिदत व हराम है। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 464 में लिखा है देवबंदियों के फकीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही ईद के दिन मुसाफा मुआनका बिदत है। फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 111 से 12 में लिखा हुआ है बिदत व हराम है। अहसनुल फतावा में देवबंदियों के मुफ्ती रशीद अहमद लोधियानवी ने जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 354 में लिखा है बिदत व हराम है। और इसी तरह देवबंदियों के हकीमुल असर मुफ्ती यूसुफ लोधियानवी आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 417 में लिखा है बिदत व हराम है। कसीर हवाला है। बताइए उलमाए देवबंद को क्या चीड़ थी सलाम और मुसाफा मुआनका को बिदत व हराम करार देने का, और आप बिदत व हराम में जो खुद मुब्तला है उनके साथ आप क्यों देते हैं? तो सही कि फाजिल बरेलवी ने तकरीर का पैसा तय करना हराम लिखा है और आज 95% उलमा कर रहे थे। देखिए आप मौजू से इधर उधर भटक रहे हैं, पर इसको पहले हल कर लीजिए। जो सवाब का काम है उसको बिदत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तय करने को किसने हराम लिखा है? फाजिल बरेलवी ने हराम लिखा है। देखिए उलमाए मुताखिरीन ने तकारीर को, मदारिस में खिदमत करने वाले को, इमामत करने वाले को कुछ हदिया देने को जवाज का रास्ता, उसमें मत जाइए, वो इख्तिलाफी मसाइल है। तय करने को हराम, कोई डिमांड करके करता है तो वो गलत है। नहीं गलत है कि हराम है? हराम लिखा है। हराम नहीं लिखा है कहीं पर, बताइए। नहीं हराम लिखा है। हराम कहाँ लिखा है? आप हवाला दीजिए मुझे। इरशादात आला हजरत एक किताब है, उसमें पढ़ना। इरशादात आला हजरत सफा नंबर बता दीजिए, मैं खुद मेरे पास किताब मौजूद है। मैं इंशाल्लाह बता दूंगा जब मिलेगी। देखिए जनाब, अपने अटकल पर बात ना करें। मैं इतने हवाला दिया आपको। 50,000 रुपये ले रहा है तकरीर का, 40,000 तय कर रहा है। मैं तो कभी तय नहीं करता हूँ, कभी इतने प्रोग्राम करता हूँ, वो अपने मर्जी से देते हैं। जैसे अभी देखिए बहुत सी मर्जी और एक हरामकारियां हो रही हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं। देखिए और एक हरामकारियां क्या हो रही हैं, अभी शादी ब्याह जो करता है ना, लेते हैं वो मर्जी से लोग वो मना है। वैसे उलमा को बुलाया ना जाए, मना है वो अलग बात है, लेकिन हराम है कि हलाल है? वो अपनी जबरदस्ती लेकर के तो वो नाजायज हम कर सकते हैं, हराम हलाल का फतवा नहीं दे सकते। हम्माद रजा ने फरिश्ते को लंगड़ा बताया कि फरिश्ता लंगड़ा। माज़अल्लाह, कहाँ आप जा रहे हो? हम्माद रजा मुरादाबाद में नहीं बताया, ये मशहूर है बात। मौलाना साजिद साहब ने फतवा दिया था कि कुफ्र है और उसको निकाह करना पड़ेगा, वो इस्लाम से खर्च हो चुका है। अभी बच्चे लोग क्या करता है, और आज भी तकरीर कर रहा है दुनिया भर इधर से उधर। अभी बच्चे लोग क्या करता है, निकाह करता है ना तो डिमांड करता है जहेज का, वो भी हराम है। नहीं, ये हम्माद रजा ने जो कहा कि फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, नहीं आप कहने पर आप किताबों के हवाले से बात करें। हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने, मुरादाबादी ने कहा तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे। ये किस हदीस में लिखा है? माज़अल्लाह, कौन से किताबों का हवाला दे रहे हैं आप? तो ये फिर बिलग्राम वाले हैं और भी कौन सी किताबों का हवाला दे रहे हैं सर साहब? ऐसी बातें ना करें। पूछते क्यों नहीं है कि तूने किस किताब में? किसको पूछे कौन सी किताबों में लिखी हुई है? किताबों के हवाले से मुझे बात करें। मैं किसी आलिम को, यानी कोई मशहूर नहीं है और उसको मशहूर बना के पेश करोगे, फलाना मौलवी ने ये कहा, वो जो कहा मुनफरिद है, उन्हीं से पूछा जाए। देखो क्यों इस तरह के बयान किए? हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मदनी मियां साहब ने
جب ذبیحے کا مسئلہ بتایا تھا تو کس نے مخالفت کی تھی؟ دیوبندیوں نے کی تھی کہ بریلویوں نے کی تھی؟ کیا چیز کا؟ جو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ دیوبندی کا ذبیحہ کوئی نے پوچھا جائز ہے کہ نہیں، تو آپ نے کیا بتایا کہ جو ذبح کرنے والے ہیں عام طور سے ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں کس نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے، تو کہا کہ اس لیے ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں کہ عام طور سے ان باتوں کو معاذ جانتے اللہ ہیں۔ رب العالمین، دیوبندیوں کا ذبیحہ جو تو ہے انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مردار کی طرح ہے، حرام ہے، نہیں انہوں نے یہ اس کہا پر تھا کہ ایمان وہ لانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عام طور سے لوگ جانتے نہیں ہیں، کہے جاتے ہیں دیوبندی لیکن جانتے نہیں ہیں ان اچھا، باتوں کو۔ بہرحال آپ یہ ادھر بتاؤ ادھر کی حضرت باتیں کرتے مدنی رہیں میاں گے، صاحب نے میں جو عیدین، آج عید حضرت کے دن مدنی ہے۔ میاں صاحب نے جو بتایا اطہر تھا، صاحب، حضرت مدنی میاں صاحب شیخ الاسلام نے جو بتایا تھا، اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ گھوسی والے مفتی صاحب نے کی تھی، اطہر صاحب بمبئی آج، والے کلیم حنفی صاحب نے مخالفت کی تھی۔ اچھا بہرحال آج عید کا دن ہے، مسافہ معانقہ آپ چلو کر کے حرام مسافہ کاری معانقہ میں تو بات مبتلا ہیں، الگ اس سے ہے، توبہ لیکن کریں گے یا یہ نہیں؟ بتاؤ تو صحیح کہ جب مدنی میاں اس صاحب سے نے پہلے مسئلہ توبہ کر بتایا لیں، تو اس کی مخالفت کیوں کی تھی؟ نہیں عالم پہلے اس سے توبہ کر لیں، آپ مسافہ معانقہ کر کے حرام انہوں نے کاری میں پوری مبتلا ہیں، تفصیل بتا دی اور تھی اپنے کہ اکابر کے فتوے کو ٹھکرائیں نہیں۔ آپ دیوبندی کے ساتھ میں رہتے ہو اور ان کے ہم نوا بن دیکھو کر کے ان کی حمایت کرتے ہو۔ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، جو کلمہ پڑھتا ہے جب تک اس کی زبان سے کفر نہ سن لیا جائے تو اس کو کافر کہنے کا حکم ہے کیا؟ نہ میں کافر ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو اعلیٰ اعلانیہ ان لوگوں کے کفر مجھے واضح ہے، مجھ پر آیا ہے، وہ روشن تو ہے، جس کا دلیل کفر بین واضح موجود ہو، ہے، کتابوں میں موجود ہے، میں جس کا اور کفر آج واضح بھی ہو، چھپ رہی ہے وہ کتاب۔ میں تو کہتا ہوں ان کتابوں کو بیچ چوراہے میں، جیسے تقی عثمانی نے کہا تھا، بیچ چوراہے میں رکھ کر کے امداد الفتاوی یعنی اشرف علی تھانوی کی کتاب، تقویت الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب، اور فلاں بہشتی زیور اور فلاں فلاں کو بیچ چوراہے میں رکھ کر کے آگ لگا دی جائے۔ بہرحال میں تو یہ ہمارے پاس بدعتی، مفتی شریف الحق کا فتویٰ بھی ہے، شریف الحق امجدی صاحب کا فتاوی شارح بخاری، اس نے جلد اول میں لکھا صفحہ 36 میں کہ الملفوظ احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو غلطی جیسے ملفوظات ہے نا، نہیں ہے، وہ چھپائی کی نہیں ہاں لکھی، انہوں نے بالکل بالکل، ڈائریکٹ بتایا ملفوظات اعلیٰ حضرت کے کہ یہ دیکھو دور میں ان کے حیات میں نہیں چھپی، تو بلکہ وہ بعد کسی میں کے بہت بھی حیات میں بعد میں چھپی ہوں، چھپی ہے، لیکن اور اس میں یہ آپ کی غلطی 80 یہ ہے، سال میں تک سو سال آپ کو سے میں کل اطہر نہیں، صاحب کل 100 آپ سال کی سے ویڈیو میں دیکھا تھا، یہ کتاب 100 سال سے چھپ رہی ہے کہ نہیں چھپ رہی؟ چھپ رہی ہے، بے شک چھپ تو رہی ہے، اب یہ بتاؤ لیکن کہ کسی دیکھیے کی کتاب میں غلطیاں ہوں تو غلطی بالکل اپن نہیں کو ہے، ان باتوں سے کیا مطلب؟ جو آپ کی سمجھ میں غلطی ہے، جس میں گڑے غلطی کیا مردے نکالیں آپ؟ اکھاڑنے سے گڑے مردے اکھاڑنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اطہر صاحب گڑھے مردے نکال ایک کر آپ کے ہم دیوبندی نے بالکل لکھا تو ٹھوکیں گے، بریلوی نے لکھا تو اس سے دیوبندی امت بنا کو اشرف علی تھانوی، رشید احمد نہیں، گنگوہی، قاسم نانوتوی، اس سے یہی سب۔ امت کو کیا فائدہ ہے ان باتوں سے؟ اگر فائدہ ہو تو ہم بھی کریں، نہیں ٹھیک ہے بات دیوبندیت کو چھوڑ دیں، آپ نہیں۔ توبہ کر کے دیوبندیت اہل کو سنت نہ قبول کیوں نہیں دیوبندیت کرتے؟ نہ حق کو کب بریلیت، ساتھ دیجیے۔ ہم دیوبند اور بریلی پہ ایمان نہیں لائے۔ آپ لاؤ کس پہ؟ آپ بریلی پہ ایمان لاؤ کیا؟ ایک بات سن لیجئے، نہیں، دیکھیے آپ کس پہ ایمان لاؤ؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نہیں، جس پر ایمان کس پہ لاؤ؟ پرانی بریلی پر جماعت نہیں، قائم ہے، نہیں بریلی پہ لاؤ، دیوبند پہ لاؤ، یا علماء بریلی پہ بریلوی لاؤ ہی یا علماء اہل دیوبند پہ سنت و لاؤ۔ جماعت ہے نہیں، حقیقت میں، آپ ایمان کس اور پہ لاؤ؟ حق علماء کے بریلی پر ساتھ یا ہے۔ علماء دیوبند پر ایمان لائے آپ؟ علماء دیوبند تو سڑا ہوا کافر ہے نہیں نا، نہیں نہیں، اپنے گستاخی کے نہیں، سبب۔ آپ کیا علماء بریلی پر ایمان لائے ہو؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا ارے مجدد ایمان، ہیں، چلو انہوں ان نے کا ایمان لاؤ۔ بتایا، کیا آپ رسول فاضل پاک صلی اللہ بریلوی علیہ پر وسلم کے نہیں؟ پیغام آپ کو کیا اجاگر فاضل کیا ہے بریلوی پر رسول ایمان پاک صلی نہیں؟ اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تو بتاؤ فاضل بریلوی پر ایمان لائے ہو کیا آپ؟ تمام اولیاء، تمام ارے میں کتب کو ہم پوچھ رہا ہوں، مانتے ہیں، ایمان اور کس پہ لائے؟ ایمان لانے نہیں کی نہیں، بات رہی ہے، ایمان اللہ کس پہ رسول پر لائے؟ ایمان لانا چاہیے۔ نہیں، ایمان کس پہ لائے؟ آمنت ایمان میں پڑھا باللہ و جاتا ہے آمنت ملائکتہ و باللہ و کتبہ ملائکتہ و و کتبہ، میں کتبہ و ایمان لایا رسولہ اللہ پر، اس کی والیوم کتابوں پر، الآخر والقدر اور خیرہ و اس کے شرہ رسولوں من پر، اللہ والیوم تعالی الآخر، آخرت کے دن پر۔ والبعث بعد الموت، تو اس میں یہ ہے بتاؤ ایمان۔ دیوبند و بریلی کا کہاں ذکر ہے؟ اہل حدیث کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں اتاریوں کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں کیا؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم یہ کا بتاؤ فرمان کہ مانتے آپ ہیں یا نہیں؟ باتیں دیوبند بریلی کی لے کے بیٹھ جاتے ہو، اس دیکھیں سے میں بتا امت رہا کو ہوں کیا آپ کو فائدہ اطہر ہو صاحب، رہا ہے؟ اس سے 72 امت فرقے کو کیا جہنم فائدہ میں ہو رہا ہے؟ جائیں گے، ایک یہ جماعت امت جو کو ہوگی ٹکڑے جنت ٹکڑے میں کر جائے گی، دیے وہ اہل گئے ہیں، سنت و آج یہ جماعت ہے۔ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ مودودی ہے، اور ہم سلح 30 کلیت کروڑ میں کی آبادی، آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہوم منسٹر امت شاہ صاحب سے آپ پرمیشن لو، ان کے کیا کی پرمیشن صاحب کہ جن گننا ہم دوبارہ سے کریں گے کہ مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ نہیں ہے، کہ کیسے کہ نہیں، ہمارے حساب سے ہم دیکھیں گے کتنے مسلمان ہیں کتنے نہیں ہیں۔ ایک بات اور سن لیں اطہر نہیں، صاحب، جس حساب سے آپ مسلمان مانتے ہیں اس حساب سے 30 کروڑ ملیں گے نہیں، 20 بھی نہیں نہیں ملیں گے، 15 بھی نہیں ملیں گے، 10 بھی نہیں ملیں گے۔
अच्छा, बहरहाल आप सुने गौर से, अहले हदीस कहेगा कि हम इन दोनों को ही नहीं मानते। अहले हदीस तो आटे में नमक के बराबर है, उसकी गिनती शुमार ही नहीं है। मुसलमान नहीं मानते थे, जिसको सफदर ने, देवबंदी सफदर, उनके कोई इमाम ने कहा कि गैर मुकल्लिद जो है ना कुतिया के बच्चा है, लिखा है वो ये अनवारे सफदरिया में। इसका मतलब क्या है? ये सब इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल में 3 जगह है। बहरहाल अतहर साहब चले जाओ, जामनगर मिस्र में ये सब अतहर साहब इधर उधर बात ना करें, 1 मिनट सुन लें। देवबंदी जानते ना बरेलवी जानते हैं, आप सुने, 1 मिनट सुन लें मेरी बात। चीन चले जाओ, आप जापान चले जाओ, आप फ्रांस चले जाओ, आप लीबिया चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, कतर चले जाओ, दोहा चले जाओ, ये इन चक्करों में पड़ते नहीं कि आप सुने, 1 मिनट सुन लें। देखिए, देवबंदियों के मुफ्ती आजम जिसको कहते हैं मुफ्ती रशीद अहमद देवबंदी, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? सुनिए, फरमाया कि हर वो काम, बताओ ना कि मैं भी सुन लीजिए ना, सुनिए ना, फरमाया हर वो काम जो मैंने बयान नहीं किया जो आप और मेरी तरफ से, नहीं, इस तो सुनो, अगर 1 मिनट सुन लीजिए ना, फायदा बहुत है। कितने देवबंदी तौबा करके मुसलमान बन रहे हैं। देवबंदी ने ये लिखा, वो लिखा, अगर इन बातों से फायदा है, सुनिए ना, सुन लीजिए, आप सुनिए भी, 1 मिनट, आपकी बात सिर्फ हो गई तो आप खामोशी सुनिए। फरमाया हर वो काम जो मैंने बयान नहीं किया और मेरी तरफ से हजरत साहब किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बयान नहीं किया, जिस पर अमल नहीं किया उसको अपनी तरफ से सवाब समझकर करने लगे तो वो गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। खुतबातुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 142 में लिखा। तो बताइए, जितने मुसलमान अभी हैं मुसाफा, मुआनका, सलाम, कलाम को सवाब समझते हैं, तो ये सवाब समझकर जो कर रहे हैं वो बिदअती और गुमराह जहन्नम में जाने वाले करार दिए हैं देवबंदी। तो देवबंदी से आप तौबा क्यों नहीं कर रहे? देवबंदी का मतलब क्या है? देवबंदी बरेलवी, देवबंदी वो है जो अल्लाह को झूठा माने। देवबंदी वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर के मिट्टी में मिलने वाला माने। देवबंदी वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे खबर नहीं, दीवार के पीछे खबर नहीं, उसको देवबंदी कहते हैं। वो कह रहा हमने कभी नहीं सुना है बात। क्यों? तक़वियतुल ईमान उनके आईने इस्लाम है, जिसको नहीं पढ़े हैं आप। तुमने निकाली, आप पढ़ करके अंधे क्यों बन रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ते किताब? ये अभी कट्टा सुनिए, हमारे पास बैठे हैं, भी सलाम। ये देवबंदर ऐसे हैं जो मुंह में कुछ और दिल में कुछ है, वो दोगलापनी का निशानी है, समझे? देवबंदी जितने हैं दोगला है, तो उसे छोड़ कौन देगा? उसे उसी वक्त मार डालेगा आदमी। इसीलिए जलील होता है ना देवबंदी, जहाँ पर जाता है हमेशा जलील होता है। सुना जो आपने बात कही, झूठ वाली बात, कभी आपने सुना? बिल्कुल, उनकी किताब 8 किताबों लिखी हुई है। किताब में से क्या क्या लिखा है? इसीलिए मैं कहता हूँ किताबों को जलाओ और आओ आपके तरफ। कभी जबान से सुनी आपने उनके? क्यों नहीं? आप किताबों को जला देते, क्यों छाप रहे हैं देवबंदी किताबों? जबान से सुनी आपने? वो किताबों को छापना बंद करें और जला दें उसको, अरे तक़वियतुल ईमान पे आग लगा दें। अरे ये बताओ कि वो तो इलियास कादरी की भी मुखालिफत, इलियास कांदिलवी ने क्या लिखा? इलियास ने जो लिखा है फज़ाइल अमाल, जिसका नाम था तबलीगी निसाब, उसमें लिखा है अल्लाह को बाद में मालूम हुआ। अगर मालूम पहले से रहता तो कुछ ज़कात का इजाफा कर देता। अल्लाह को भी नहीं मालूम होता है माज़अल्लाह। और तक़वियतुल ईमान में क्या लिखता है इस्माइल दहलवी? ऐसी बातें कहीं सुनने में नहीं आई। आप अब मैं हवाले बता रहा हूँ, आप किताबों को वर्क गर्दानी करें और पढ़ें और अपना ईमान को संवारें। चलाने वाली बातें करते हैं, कौम में फूक डालो। अतहर साहब, मतलब ये है कि जिन्होंने रिश्ते कर लिए हैं भी आपस में, कितने रिश्ते हैं, कितनी लड़कियां देवबंदियों की इधर आई हैं, हर गांव में हैं। तो इनका मतलब ये है कि हर गांव में कहीं पर रहे, आप अपना अकीदा से मतलब रखें। हर कोई क्या कर रहा है, कोई नंगा फिर रहा है तो आप भी नंगे फिरने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि फिर जो उनकी औलाद हुई उसे क्या मानेंगे, हलाली मानेंगे कि नहीं? आप बताइए, सब अगर मार्केटों में नंगा फिरने लगे तो आप नंगा फिरना शुरू कर देंगे? जो हो चुके हैं
आप किताबों को पढ़ें, अतहर साहब आप किताबों को पढ़ें और अपना ईमान और अकायद दुरुस्त करें और देवबंदियों को लात मारें और मुसलमान बने, सच्चे मुसलमान बने। करेगा कोई भी करेगा तो उसे कोई छोड़ देगा मुसलमान? नहीं कि वही मार डालेंगे। कोई हुजूर शान में गुस्ताखी करेगा उसे छोड़ देंगे? आज अरे गुस्ताखी तक़वियतुल ईमान में, हिफ्जुल ईमान में, बराहीने कातिया में छुपा इतनी किताबें मुगल्लिज़ात देवबंदियों की भरी पड़ी है। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हैं तो माथा पीट लेते हैं। कई से देवबंदियों को अक्ल होता है। इसीलिए अशरफ अली थानवी ने सच रिसर्च किया था। अशरफ अली थानवी सच रिसर्च करके फरमाया और बयान दिया कि जितने भी आवाम यानी देवबंदी हैं उसका अकल गधे के उसमें तो महसूस की जैसा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बातें करते हैं देवबंदी बरेलवी ये सब बातें करते। ये आप क्या कीजिए, अगर कोई गुस्ताखे रसूल है तो उसके लिए हम तो अकीदा है कि उसके लिए जमीन टाइट हो जाती है, अल्लाह उसका जीना हराम फरमा देता है। इसीलिए देवबंदियों का जीना हराम हो गया है। अभी देखिए हर जगह जलील हो रहा है और इतने फतवा दे, अपने ज़हन से इख्तराबाजी करे। आपस में रिश्ते हो रहे हैं यार, एक दो रिश्ते नहीं है। हज़रत मौलाना देवबंदियों से रिश्ता करना हराम अशद हराम है। मियां साहब के दामाद थे, उनके नाना मामू बिल्कुल नहीं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अतर साहब इधर उधर की बात ना करें। गाँव के रहने वाले थे। कुछ किताबों को पढ़ें। मुफ्ती इफ्तिखारुल हक साहब अमजदी हैं, मुफ्ती इफ्तिखार कुछ हसन किताबों को पढ़ें कर रहे हैं। उनकी दोनों बहनें देवबंदी के घर में, मैं तो उनके घर में तकरीबन एक आपने अभी तक किताबी दुनिया से इल्मी बात से भी आप मावरा हो कर रहे हैं। तो ऐसे कहा वो अगर मऊरानीपुर वाले जाके देख लें, नजीबाबाद में पता लगा। आप क्या कीजिए, मंगवा लें, 10,000 5,000 गाड़ी जाए भेजें। नहीं आप क्या कीजिए अतर साहब एक एक मसाइल उठा के इल्मी बातें करना सीखिए। आपको कम से कम इल्मी बात करोगे, किताबों की बात करोगे ना। इल्मी बात करो, क्या इल्मी बात करें? अभी तक आप बकवास कर रहे हैं। इल्मी बात करो। मैंने कहा है मुआनका मुसाफा मुआनका के मुतालिक ईद के दिन है और ईद के दिन जो हराम कारी में मुब्तला है देवबंदी, बताइए अपने अकाबिर को भी लात मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं। तो इन लोग तो अकाबिर के नक्शे कदम पे जो नहीं चलता है वो देवबंदी नहीं है कह करके फतवा मौजूद है। देवबंद वाले में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो औलिया किराम के मज़ारों पे भी जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ भी जाते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ भी जाते हैं, चिश्ती सिलसिला भी रखते हैं और अदब करते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज आकाबिर देवबंद में रफी उस्मानी साहब हैं, जिसे जानते हैं रफी उस्मानी साहब, आप क्या काबिर हैं? करता है तो हम उसे नहीं मानते। हम रफी उस्मानी साहब को जानते हैं? अरे उनके भाई हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के छोटे भाई हैं शायद। अच्छा हाँ, वही जो अकाबिर देवबंद में शुमार होते हैं। वो कहते हैं जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले वो मसलके देवबंद से हटा हुआ है। मसलके देवबंद किसी फिरके का नाम नहीं, इत्तबा सुन्नत का नाम है। सफा नंबर 39 पे लिखा हुआ है। तो बताइए अशरफ अली थानवी भी हराम कहा है, रशीद अहमद गंगोही हराम कहा है, कितने मुफ्तियाने देवबंद हराम मुसाफा मुआनका करते हैं। जितने भी अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितने भी देवबंदी हैं ईद की नमाज पढ़ करके मुसाफा मुआनका करके हराम कारी में मुब्तला हुए और हराम कारी में मुब्तला होकर के खुद जहन्नम में चले जा रहे हैं। जामिअतुर रज़ा से बरेली तो क्यों आप ऐसे धर्म से तौबा क्यों नहीं कर लेते? मुफ्ती शमशाद घोसी का तो सुनो, मुफ्ती शमशाद आप क्यों तौबा नहीं कर लेते? कौन सी किताबों के हवाला दे रहे हैं? अपनी हाके तजाव जामिअतुर रज़ा से ऐलान किया मुफ्ती शमशाद घोसी ने, क्या है हाशमी हो, क्या है मदनी हो, क्या है बगदादी हो, कभी देख रहे हैं नीचे, कभी देख रहे हैं इधर, कभी उधर। आपकी टूट गई कमर लेकिन तौबा नहीं कर रहे हो। शाफी मालिकी हम्बली वो गलत हुए क्या? अगर उसने कहा कि हम मसले के आदम से मसले के इमाम आजम मुराद लेते हैं तो फिर तीनों मसले क्या हुए? आप भी हराम कारी में मुब्तला हुए, आपके अकाबिर आपको हराम खोर कर रहे हैं, तो आप हराम खोरी में मुब्तला हो गए तो आप तौबा क्यों नहीं कर लेते? जिसमें साफ साफ उन्होंने ये भी कहा कि क्या है तौबा करेंगे, क्या है मदनी हो, क्या है बगदादी हो, क्या है अजमेरी हो, क्या है बदायूनी हो। हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आला हजरत खुद मानते थे, 105 शेर उनकी शान में कहे, उनके बारे में भी कहा क्या है बदायूं। जितने भी औलियाए किराम है ना आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह उनको मानते हैं और उनके अदब व एहतराम सिखाए। लेकिन देवबंद में तो रसूल पाक अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत ही नहीं आई, उन लोगों के ईमान खाक हुआ। ये बताओ, ये जो उसने कहा मुफ्ती शमशाद घोसी ने सही कहा था कि क्या है हाशमी हो या मदनी हो, बगदादी हो, अजमेरी हो, जब तक मसले के हालात को नहीं मानेगा मुसलमान नहीं मानेगा। सही कहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो मसला के आला हजरत को रत्ती बराबर अगर कोई मुखालिफत किया अकायद में,
सुन लीजिए, अकायद में जो मुखालिफत किया वो बिल्कुल इस्लाम का गद्दार है, इसलिए कि आला हजरत का अच्छा ये कोई बताओ, ये ईमान और हाशमी अकायद मियां हदीस साहब और ने, कुरान मदनी मियां के साहब ने, मुखालिफ नहीं बिल्कुल नहीं है। हाशमी मियां साहब, मदनी साहब ने कौन सी मुखालिफत की थी जो उसने इन दोनों का नाम लेकर कहा कि क्या है हाशमी है मदनी? इन दोनों ने कौन सी कौन मुखालिफत की थी? कहाँ कौन सी किताब में है? नहीं, मुफ्ती शमशाद घोसी ने कहा क्या है हाशमी हो या माशाअल्लाह मदनी रब्बिल हो। आलमीन, इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उसने साफ आप कहा तो पूरी रशीद दुनिया में अहमद वायरल, गंगोही पूरी के दुनिया धर्म में में आप वायरल हुई। चलते हो, तो रशीद अहमद नहीं, उसने गंगोही साफ कौन साफ है कहा क्या जानते है हैं? हाशमी हो क्या है मदनी हो। जब तक मसले की हालत को नहीं मानेगा, मुसलमान नहीं मानेंगे, तो हाशमी या मदनी मियां का नाम क्यों लिया? इन दोनों को रशीद टारगेट अहमद क्यों बनाया? गंगोही, नहीं, इन दोनों को टारगेट क्यों बनाया? बहरहाल आप इधर उधर नहीं, की बात बहरहाल कर रहे क्यों हैं। बहरहाल? अब जब आप फंसे कौन तो सी बहरहाल, किताबों की बात कर रहे हैं जब बताएं ना फंसे जी। तो बहरहाल कह रहे हो तुम। नहीं, कौन सी किताबों से बात कर इलियास रहे हैं? कादरी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, उसमें तुम कौन खामोश सी हो। किताबों में उसने है? अपने मिलादनामा पढ़वाया, उसमें तुम कौन सी खामोश हो। किताबों में उसने जो मौजूद है कि है? लब्बे की अत्तार के नारे लगवाया, उसमें तुम खामोश हो। उसने सलाम का मजाक बनाया, उसमें तुम खामोश हो। उसने सफा 31 पे लिखा कौन कि सी किताबों अल्लाह के से रसूल सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम हवाला खड़े दे हैं रहे हो? और ये बहरहाल इलियास कादी बैठा हुआ है सुनो खाने सुनो, काबा में। सफा 31 पढ़ो, मैं फैजान एक सुन्नत। शेर पढ़ रहा हूँ, सुन उसमें सफा लीजिए। 27 पे लिखा है कि लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। सफा 27 और सफा 3 में लिखा है ये किताब बारगाह रिसालत में कौन सी मकबूल है। किताब, कौन सी किताब नाम फैजान ले? सुन्नत, फैजान सुन्नत। फैजान सुन्नत में क्या लिखा है? सफा 3 में लिखा है कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है। जब मकबूल है तो इसे सफा कटवाए 3 में क्यों? लिखा है, हाँ लिखी हाँ हुई बात है। हाँ हाँ, लिखी बात है। फैजान सुन्नत पढ़ो, पुरानी नहीं, बिल्कुल मेरे पास नई में फैजान से कटवा सुन्नत दिया, नई मौजूद है। में से कटवा दिया। कटवाया क्यों? जब ये बारगाह रिसालत में ये माज़अल्लाह, किताब बहाना, मकबूल है तो ये जो किताब बहाना कर रहे हो, मेरे पास नहीं, खुद ये मौजूद ख्वाब है क्यों यहाँ पर। कटवाया भाई? पुरानी में पढ़ो, नई में से कटवा दिए सब। सुनिए सुनिए, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में अच्छा, इकबाल अभी का मुफ्ती शैम्पू ही सरताज दिखा दो, अहमद साहब और बरेली वाले अहमद ने, रजा का अभी नाम से नहीं, चलती हैं ट्रेनें, अभी मुफ्ती अशरफ सरताज अली अहमद साहब थानवी के बरेली ने नाम से इसकी, शैम्पू ही दिखा दो। अरे मुफ्ती सरताज अहमद बरेलवी ने अभी इलियास कादी की मुखालिफत में पूरी वीडियो बना दी है। आप सुनो तो हदीस सही। मौलाना हदीस इम्तियाज अहमद इश्क बरकाती की साहब बहुत रोशनी काबिल की आलिम है, कोई उन्होंने तफसीर लिख देंगे, खलीफा शेखुल इस्लाम जब लिखा है, इन्हें उन्होंने कुफ्र पर पूरी हम नारे पूरी तकबीर लिख वीडियो बना दी देंगे। है कि इन्होंने अपने हमारे इलियास जिस्म कादी ने में अपने बाल को हरदम बाल मुबारक हुसैनी के बटवा खून दिया रक्षा है, और सलाम का जहाँ मजाक पे बनाया। और करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। नहीं, और शेर 2 सुनिए, लाख करामतें, और 2 तुम लाख करामतों का क्या मतलब है? इलियास कादी की कम नहीं, 2 शेर लाख सुनिए ना, करामत, 2 लाख शेर करामतें। सुनिए कि तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों अरे नहीं यार जाते कुछ जवाब अतहर, तो दो, सही से जवाब दो। तुम ये बुग़्ज़ बताओ की कि गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते अतहर, जिस सिमत बरेली है इमाम इधर ज़ैनुल क्यों आबिदीन का नहीं तुम जाते कभी चर्चा नहीं अतहर। करते, न हम बाकर अब पे एक करते, न इमाम कुत्ते की जाफर का तरह करते, न जीना इमाम भी मुसा काज़िम किस का काम करते, क्या न जीना। हज़रत इमाम अली रज़ा पे करते, अख्तर न से इमाम अदावत तकी है पे करते, न अहमद हज़रत इमाम रजा से नकील पे करते, न अदावत हज़रत है, इमाम तो हसन मर क्यों अस्करी पे नहीं करते। जाते। तो ये बताओ तुम मर क्यों नहीं जाते कि तुमने अभी तक इश्को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का उल्फत नाम का तक नहीं लिया? इन्हीं तुमने हथियार कभी देना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चाहिए। जिक्र नहीं किया, न इमाम प्यार बाकर जो कर दिया, न करते इमाम हैं जाफर कर उनको दिया, न इमाम प्यार मुसा काज़िम देना कर दिया। चाहिए। तुमने और आज तक मसलके पूरे आला हजरत हिंदुस्तान में से इनके जो नाम भी का जलसा रखता है कराया जलन, आज तक? मेरा मसलके चैलेंज है, नंबर आला लिखो, मेरा हजरत से चैलेंज है, नंबर लिखो, जो भी 88 रखता 152 है 53 जलन, 598 नंबर बीच लिखो। चौराहे और में 2 लाख उसको रुपए, 2 लाख कत्ल रुपए कर देखो, देना 88 चाहिए। 152 53 समझे, 598 नंबर लिखो, 2 आप लाख रुपए आला दूंगा हजरत के बुग़्ज़ अगर में इमाम अब जल ज़ैनुल रहे हो। आबिदीन से लेकर मैं इमाम तो हसन हक का अस्करी तक पैगाम आप तक कोई भी पहुंचाया, लेकिन हिंदुस्तान का आपको आलिम अगर तौफीक 1-1 नहीं घंटा इन हुई। पे तकरीर कर दे तो मुझसे 2 लाख रुपए आपको लेके जाए। तौफीक नहीं हुई और तौबे बकरीद तक तौबे का की, टाइम दे रहा हूँ, नसीब 2 नहीं महीने होती। 10 दिन का टाइम भी बुग़्ज़े दे रहा हूँ। आला हजरत में इमाम आप ज़ैनुल बंधे हो आबिदीन पे चुके घंटे हो, तकरीर करे है मेरे ना। सामने, इमाम बाकर पे करे, इमाम जाफर पे करे, इमाम मूसा